हाँ, प्रैक्टिकल्स हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं। And here we are add one switch and devices like PCs and two PCs and it will connect with switch like this. And here we will see how to packet switch one device to another device and what information carry in headers in packets. Okay, so first of all we are enable config IP address on end devices 192.168.1.1 and its subnet default subnet mask because its IP is class C IP and class C subnet mask also. And if we are communicate in same network, then we don't have it doesn't matter we have default gateway or not. So here default gateways doesn't matter. So we are not configuring default gateway on end device because both device in same network and as well as on this device 192.168.1.2 and its default gateway subnet mask and doesn't matter default gateway. Okay, and before starting practicals you have to run simulation and show all none and edit filter, and here it will check ARP and ICMP, both are our protocols. ARP is used to find layer 2 address. It means it will find our MAC address. So before starting the practicals, we have to know ARP. ARP stands for Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol. And it is used to find layer 2 address. It means MAC address. And ARP is always perform broadcast. It always perform broadcast. And it do not cross one broadcast domain. It do not cross broadcast domain. Okay, and it is a layer 2.5 protocol, and you will have to read it is our layer 2 protocol, and some people are saying layer 3 protocol, but it really work in 2.5 because it have mentioned layer 2 address and as well as layer 3 address. It means MAC address and IP address carry in ARP header. So it is work on layer 2.5 between layer 2 and layer 3. Okay, and next is ICMP.
ICMP stands for Internet Control Message Protocol. Internet Control Message Protocol. And it is used to check connectivity on destination address. It is layer 3 protocol. And it uses ping. It use connectivity for ping. Do you know about the ping full form? What is ping? तो सर आपने लेकिन कई दिन हो गए. Ping stands for Packet Internet Gopher. Packet Internet Gopher. It have some information, layer 2 information and as well as layer 3 information. Okay. So now we are starting our practicals. And one by one packet open and we have to see what content it will carry. So in simulation we have already discussed, and now we are pinging in command prompt from PC0 to PC1, and now ping 192.168.1.2. Here we are entering destination address. Our destination address is 1.2. So now let's see. Be careful. Here two packets are generated. One is ARP and another is ICMP. It is our ARP packet and it is our ICMP packet. In ARP packet, if you are open this packet in outbound, it means device will send out the packet process. So first of all, we have to see ARP header. In ARP header, give me a second guys. तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारे दो पैकेट जनरेट हुए हैं, ठीक है. अगर हम यहाँ पे पहले देखते हैं, दो पैकेट जनरेट हुए हैं, एक आर्प पैकेट है और एक आईसीएमपी. तो आर्प पैकेट जो हमारा होता है वो लेयर 2 एड्रेस यानी मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज होता है. और हमारा जब भी आर्प जनरेट होगा वो ब्रॉडकास्ट होता है विद इन अ नेटवर्क, लेकिन सिर्फ वो अपने ही नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, वो दूसरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता वो, ठीक है. तो इससे पहले हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, हम इसके मैक एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है. ये PC1 का है, इस डिवाइस का मैक एड्रेस है. अब एज वेल एज इसी डिवाइस का भी हम मैक एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, तो वो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपकी. ठीक है. अब देखिए अगर हम आर्प पैकेट को ओपन कर रहे हैं तो ये पैकेट प्रोसेस हो रहा है बाहर की तरफ, आउटबाउंड हो रहा है. तो देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है आर्प हेडर में, सबसे पहले तो सोर्स मैक किसका है, खुद का मैक है. ये देखिए C4E1, ये इस डिवाइस का मैक एड्रेस है. C4E1 लास्ट की ये 2 डिजिट, सॉरी 4 डिजिट हम देख रहे हैं अभी.
ठीक है। और सोर्स आईपी किसकी, खुद की आईपी है, यानी 1.1 इस डिवाइस की आईपी है। टारगेट मैक क्या है, 0, ऑल 0, यानी कि अभी पता नहीं है हमको टारगेट मैक क्या है। और टारगेट आईपी क्या है, 1.2, यानी हमें डेस्टिनेशन पे जहां जाना है उसकी आईपी है। और लेयर 2 हेडर, अगर हम लेयर 2 हेडर की बात करते हैं तो लेयर 2 हेडर में डेस्टिनेशन मैक क्या है हमारा, ऑल एफ है। ठीक है, ऑल एफ का मतलब ये है, ये ब्रॉडकास्ट के लिए है। ठीक है। और सोर्स मैक इस डिवाइस का मैक एड्रेस है। ठीक है। अब ये पैकेट अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो ये जाएगा पहले स्विच के पास। और स्विच पे भी हम एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम स्विच पे अभी हम कोई चीज देखते हैं कि हम मैक एड्रेस की एंट्री अगर हम देखते हैं तो अभी हमारे पास कोई भी मैक एड्रेस की एंट्री नहीं होगी। सो मैक एड्रेस टेबल, ये हमारे पास कमांड होती है मैक एड्रेस को चेक करने के लिए। तो देखिए ये डायनेमिक एंट्री एक बनी हुई है, लेकिन ये डायनेमिक एंट्री ये इंटरफेस की है जो हमारे स्विच से कॉन्फ़िगर है। ये देखिए, ये हमारे डिवाइस की कोई भी मैक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हुई ये ऑटोमेटिक इस चीज को रन किया, डायनेमिक एंट्री हुई, यहाँ पे बीपीडीयू सेंड होते हैं, तो वो हमारा एंट्री यहाँ पे बन गया। ठीक है। लेकिन अभी अगर हम डिवाइस पे चेक करेंगे तो डिवाइस के पास अभी कोई भी एंट्री नहीं है, तो ये पैकेट फॉरवर्ड होगा आर्प पैकेट, आईसीएमपी पैकेट हमारा यहाँ पे होल्ड होता है। तो ये आर्प पैकेट हमारा पहुंचा स्विच के पास। तो स्विच जब इनबाउंड पे ये रिसीव किया तो डेस्टिनेशन मैक क्या है, अभी भी इसके लिए ऑल एफ है। सोर्स में पीसी को सेंड करता है। अभी भी देखिए, अगर हम आर्प हेडर में देखते हैं तो टारगेट मैक अभी भी हमारा क्या है, ऑल 0 है, और टारगेट आईपी 1.2 है। ठीक है। और सोर्स मैक इस डिवाइस का मैक है, यानी पीसी 0 का ये मैक लगा हुआ है। जी अब ये पैकेट अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो ये हमारा आएगा पीसी 1 के पास। जब पीसी 1 के पास आएगा तो इस चीज को वो एक्सेप्ट करेगा। देखिए एक्सेप्ट किया। अब यहाँ ये अपनी इंफॉर्मेशन इनबाउंड में क्या होगा, ऑल एफ होगा अभी भी डेस्टिनेशन मैक। और आर्प हेडर को अगर हम देखेंगे तो आर्प हेडर में अभी भी ऑल 0 है। अगर ये आउटबाउंड, यानी अब ये पैकेट रिप्लाई के लिए हो रहा है, जब ये रिप्लाई के लिए होगा तो चेंजेस हो जाएंगे। ये देखिए डेस्टिनेशन मैक हमारा क्या हो गया, ये डिवाइस हमारा पीसी 0 अभी हमारा डेस्टिनेशन हो गया। सोर्स मैक इस डिवाइस का मैक 90 EC। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है सोर्स मैक, क्योंकि अब ये क्या हुआ, सोर्स हुआ, अब ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। तो अब ये सोर्स से अब टारगेट आईपी हमारा क्या है, 1.1, यानी इस पीसी की आईपी। तो टारगेट मैक क्या है, इस पीसी की मैक। अब ये इस इंफॉर्मेशन के साथ हमारे स्विच के पास ये पहुंचेगा। ठीक है। तो एज इट इज अब हमारा स्विच जब रिसीव किया तो ये इसकी भी एंट्री बना लेगा, अपने मैक एड्रेस टेबल में इसकी एंट्री बनाता है। तो इन बाउंड में एज इट इज ये जैसे रिसीव किया, एज इट इज आउट बाउंड से ये पैकेट को प्रोसेस करता है सेम इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस होंगे नहीं। अब यहाँ पे उसके पास सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो एज इट इज अब इसके पास आएगा, हमारे डिवाइस के पास। जब डिवाइस क्या करेगा, इस चीज को रिसीव करेगा तो ये पैकेट को सक्सेसफुल करेगा सबसे पहले। ये देखिए आर्प पैकेट हमारा यहाँ पे क्या वो सक्सेसफुल हुआ। जब आर्प पैकेट हमारा सक्सेसफुल हुआ तो आईसीएमपी पैकेट को जनरेट करता है अब यहाँ। जी ठीक है। अब ये जी आईसीएमपी पैकेट को जनरेट करेगा। तो अब ये आईसीएमपी पैकेट को जब हम ओपन करके देखेंगे तो इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी। अब सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। अब देखिए डेस्टिनेशन मैक क्या है, 90 EC, वो हमारा आर्प जो रिजॉल्व हुआ वो उसकी इंफॉर्मेशन, यानी पीसी 2 की इस पीसी की इंफॉर्मेशन जी ये लेके होता है। ये देखिए 90 EC। सोर्स मैक अब खुद का मैक,
पीसी 0 का मैक। आईपी हेडर में अगर हम देखेंगे तो आईपी हेडर में सोर्स आईपी इस डिवाइस की आईपी यानी पीसी 0 की आईपी, डेस्टिनेशन आईपी पीसी 1 की आईपी। ठीक है, और ये आईसीएमपी के कोड होते हैं, इको रिप्लाई और इको रिक्वेस्ट। जैसे कि सबसे पहले अब क्या जा रहा है, ये इको रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इको रिक्वेस्ट यूज हो रहा है, और जब ये रिक्वेस्ट जाएगा तो इस डिवाइस के पास आएगा, तो इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई करेगा ये पीसी हमारा। जी ठीक है, अब देखिए पैकेट के स्विच के पास। अब स्विच क्या करता है कि स्विच जब भी हमारा पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है वो सिर्फ मैक एड्रेस के बिहाफ पे लेता है। तो जब इस पैकेट को ओपन किया वो, तो देखा कि लेयर 2 हेडर में क्या है कि हमारे पास डेस्टिनेशन मैक है 90EC। ठीक है, तो 90EC हमारे किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, F0/2। ये देखिए शो मैक एड्रेस 90EC, पोर्ट हमारा कौन सा है, F0/2, यानी इस इंटरफेस पे हमारा ये डिवाइस कनेक्टेड है। तो हमको यहां से इसको सेंड करना है। तो क्योंकि स्विच जो होता है हमारा परफॉर्म करता है लेयर मैक एड्रेस के बिहाफ पे पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, तो यहां से ये पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा पीसी के लिए। ये देखिए ये आया पीसी के पास, पीसी ने देखा कि ये सिर्फ मेरे लिए है। जब ये लेयर 2 हेडर को ओपन किया, सबसे पहले क्या होगा कि लेयर 3 हेडर को ओपन करेगा। लेयर 3 हेडर हमारा होता है आईपी हेडर। तो इस चीज को जब वो ओपन किया तो ये देखा कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है 1.2, यानी कि ये मेरे लिए है। फिर उसके बाद वो ये वेरिफिकेशन के लिए वो क्या किया कि अपने लेयर 2 हेडर को ओपन करके देखा कहीं मे भी ऐसा तो नहीं कि ये कोई और है 1.2। तो जब वो 1.2 के लिए जब चेक किया तो देखा कि ये हमारे पास लेयर 2 हेडर में डेस्टिनेशन मैक जो है 90EC, यानी कि वो मैक मेरा है, ये पैकेट मेरे लिए आया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये पैकेट को रिसीव तो कर लिया, अब इसका रिप्लाई देगा, क्योंकि इसके पास रिक्वेस्ट आया हुआ था आईसीएमपी का। अब ये आईसीएमपी का रिप्लाई देगा। तो रिप्लाई में अगर हम पैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए डेस्टिनेशन मैक कौन सा हो गया, अब ये पीसी 0 का डेस्टिनेशन मैक हो गया, और सोर्स मैक हमारा पीसी 1 का मैक हो गया, और डेस्टिनेशन आईपी 1.1 और सोर्स आईपी हमारा 1.2 हो गया। और देखिए टाइप पहले क्या था, 8 था, 0x800, यानी कि रिक्वेस्ट है, रिप्लाई में हमारा 1 हो जाता है। ये देखिए 0x00 हो जाता है। ये हमारा रिप्लाई का कोड होता है। जैसे कि हम लोग सभी चीज के लिए एक कोड यूज होता है, तो यहाँ पे ये कोड यूज होता है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे है 800, यानी कि ये रिक्वेस्ट का अब ये रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, जी सर। अब ये आया हमारे स्विच के पास, स्विच फिर से वही इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। ठीक है, उस स्विच के इंफॉर्मेशन से मैक एड्रेस चेक किया, अब मैक एड्रेस के बिहाफ पे ये पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। ये पैकेट हमारा है पीसी के पास। अब ये देखिए सक्सेसफुल हो गया, आईसीएमपी पैकेट हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। अगर हम इसको रियल टाइम पे देखते हैं तो रियल टाइम पे हमारा ये देखिए पैकेट हमारा सक्सेसफुल हुआ, पिंग हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, जी सर। तो ये पैकेट फ्लो जो था वो सेम नेटवर्क के साथ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पीसी को ऐड करेंगे, हम उसके साथ भी पैकेट फ्लो एक देख लेते हैं कि उसके लिए ब्रॉडकास्ट होगा कि नहीं। जी एक मिनट, अब हम यहाँ पे एक पीसी को और ऐड करके देख लेते हैं। हम इस पीसी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे अब इसके लिए भी हमारा आर्प जो होगा ये ब्रॉडकास्ट करेगा। हम एंड डिवाइस को भी हम आईपी दे देते हैं पहले।
192.168.1.3, ठीक है। अब हम यहाँ से हम इस डिवाइस से पिंग करेंगे PC1 से PC2 को। तो देखिए जब हम पिंग करेंगे यहाँ पे तो इसके लिए भी ये हमारा ARP जनरेट करेगा 1.3। सॉरी ये चीज तो सिमुलेशन तो हम किए नहीं, रुकिए। ठीक है, क्लियर कर दिया मैक एड्रेस टेबल। सो मैक एड्रेस टेबल, कोई भी मैक एड्रेस नहीं है। अब सिमुलेशन पे आके एज इट इज हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पिंग करेंगे फिर से, तो अब यहाँ पे फिर से वो ARP को जनरेट करेगा। सॉरी ARP अब नहीं, क्योंकि पहले से ARP रिजॉल्व हो गया था। तो ये ICMP क्या होता है, यहाँ पे ARP पैकेट जब भी होगा हमारा ब्रॉडकास्ट होगा। एक एंड डिवाइस, सिमुलेशन एडिट फिल्टर, ठीक है। डेस्कटॉप यहाँ पे हम IP दे देते हैं 192.168.1.4, ठीक है। हम 1.3 से पिंग कर रहे हैं 192.168.1.4। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ICMP पैकेट सॉरी ARP पैकेट जनरेट हुआ। अब दोनों डिवाइस पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पे भी। तो अब यहाँ सेम इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा ये, जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम किया था। तो लेयर 2 हेडर में अभी हमारा क्या, डेस्टिनेशन मैक ऑल F है। सोर्स मैक क्या है, इस डिवाइस का मैक है 8262। ये देखिए 8262। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ अब वो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा और सेम पैकेट आएगा हमारे स्विच के पास। स्विच इस इंफॉर्मेशन के साथ ब्रॉडकास्ट करेगा। देखिए इन दोनों डिवाइस के पास भी आया। अब ये दोनों डिवाइस क्या करेंगे, इस पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जब ओपन कर रहे हैं तो लेयर 2 हेडर पे इनको ऑल F तो मिल गया। जब वो ARP हेडर को ओपन किए तो ये देखें कि टारगेट IP किसके 1.4 के लिए है, यानी कि इन दोनों के लिए नहीं है। तो इसलिए इन दो डिवाइस ने इस चीज को इग्नोर, मतलब पैकेट को ड्रॉप कर दिया। और रिप्लाई पैकेट जो ये हमारा था ICMP का, ये भी फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो पैकेट जनरेट हो रहे हैं वो ARP हमारा ब्रॉडकास्ट के लिए था, ठीक है। वो चीज मुझे आपको दिखाना था। क्लियर है? जी सर। अब हम क्या करते हैं, ये सेम सबनेट के साथ हम लोगों को प्रैक्टिकल हुआ कंप्लीट।